Assalamualaikum. Class 10th. Yes, from today onward we will start our next unit, which is unit number 8, peace. If you open your textbook at page number 91, you will see the poem Peace. Okay, first of all we will discuss what type of poem it is. It is a metaphorical poem and it has 2 stanzas. Metaphorical poem means a poem which has metaphor in it. Written by Dr. Sylvia Hartmann. First of all, we will discuss about Dr. Sylvia. She is born in Germany in 1959. Dr. Sylvia Hartmann has lived and worked in the UK since 1978. She is also known under the pen name Starfields, which she usually is mostly used for her fiction works. Fiction means होता है imagination, the work which is based on imaginations, ठीक है? And for example, if you see that in Urdu, Mirza Ghalib, his name is Mirza Asadullah Khan Ghalib, but he used Ghalib for his work, ठीक है, for poetry or for his text work. तो यहाँ पे डॉक्टर सिल्विया जो है वो स्टारफील्ड्स अपना नेम को यूज़ कर रही हैं for the fiction works. Clear? Yes, Dr. Sylvia Hartmann is a developer, primary designer of energy hypnosis project Samor. Basically hypnosis का मतलब होता है act of hypnotize someone. यानी she is a doctor and she hypnotize people. And hypnotize का मतलब होता है ऐसा यानी अमल होता है जिसमें आप जो है किसी बंदे को अपने इन्फ्लुएंस में कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं, ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें इंसान इन्फ्लुएंस में आ जाता है और द पर्सन डू व्हाट यू वांट. क्लियर? तो हिप्नोटाइज करना किसी चीज़ को. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली शी इज़ अ डॉक्टर और यहाँ पर वो उस पर बहुत सारी जो है मॉडर्न टेक्निक्स जो है वो यूज़ की हुई हैं. बट बिकॉज दिस पोइम इज़ रिलेटेड टू पीस, दैट्स वाई वी विल डिस्कस ओनली द text or only the central idea of the poem. We will not discuss about the writer. तो बस राइटर के बारे में इतना ही इनफ होता है. and we will discuss next about her work and about her theme. ठीक है? Yes, from the text I have taken this theme. Nature teaches us lesson through wind, water, mountains and light. ऐसे ही है. यस, कुदरत हमें अर्थक्वेक के ज़रिए, फ्लड्स के ज़रिए, हमें जो है वो थंडरिंग के ज़रिए जो है बहुत ज़्यादा हमें लेसन्स बताती है. विंड इन द फॉर्म ऑफ स्टॉर्म स्मैशेस एवरीथिंग इन इट्स रेज. इट डिस्ट्रॉयज ट्रीज, फील्ड्स एंड बिल्डिंग्स. बट व्हेन विंड इज़ जेंटल एंड कूल, इट गिव्स लाइव्स टू birds and humans. We have to experience storm to enjoy peace. Yes, basically in this poem, writer is describing you the two aspects of wind. One is gentle and other is harsh. Clear? Yes, move towards the next central idea or theme. The poem Peace has been written by Dr. Sylvia Hartmann, a well-known German poetess. Her poetry focuses on the theme of nature. Some of her poems are about human psychology as well. In literature, the seasons of nature and human imaginations are often used for the relationship between life and death. This poem reflects the same. Basically, many writers, as you have studied about daffodils, you have studied about stopping by words, you have studied previous to the rain, mostly the rain. In this poem, the writer describes you the aspect of nature. ठीक है? और नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होती है. राइटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करते हैं समटाइम्स. एंड फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन दे यूज रियलिटी, मतलब वो रियलिटी को हमारी आंखों के सामने लाते हैं. समटाइम्स जो हम फील नहीं कर रहे होते हैं, बट राइटर जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव पीपल होते हैं और दे थॉट एंड दे फेल्ट दैट फीलिंग विच अदर पीपल और अदर यू कैन से ह्यूमन बींग्स फेल्ट. तो वो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने लाते हैं विच वी आर नॉट या विच आर सरफेस थिंग्स. और वो ऐसे इंटरनल मीनिंग्स जो हैं वो डिड्यूस करते हैं कि जो हम समटाइम्स कोशिश भी नहीं कर रहे होते हैं. ठीक है? तो बेसिकली दिस पोएम इज़ अबाउट द इमेजिनेशंस और दिस अगेन पोएम इज़ अबाउट नेचुरल फिनोमिना. क्लियर? Yes, we will see the learning outcomes. First of all,
Learning outcomes. After completing this unit, student will recognize imaginary use in the poem, illustrate kinds of pronoun, make and use present past participle, illustrate use of gerund phrase, infinitive phrase, and prepositional phrase, paraphrase and summarize the poem, write an count of natural disaster. Basically, here this picture shows or gives a picture, message of peace. Everything is calm and everything is peaceful. Yes, we will study pre-reading. What is the concept of peace in your mind? Sometimes natural phenomena can also be destructive, and how? Give some example of natural disasters. पीस क्या आपके माइंड में आता है? अमन, सुकून लेकर आता है पीस का वर्ड, अगर आप देखें. और नेचुरल फिनोमिना बेशक डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं, जैसे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, कोई फ्लड आ जाता है. जैसे अब पाकिस्तान में फ्लड जो है वो एक शेप ऑफ फ्लड जो है वो पाकिस्तान में जो है वो आया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम द नेग्लिजेंसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज़. और ये भी कह सकते हैं कि एवरी ईयर फ्लड जो है वो आता है, और जो है और कितना ज़्यादा ये डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए आता है कि हमारा मतलब हर चीज़ जो है वो एक किस्म की स्टॉप हो जाती है, तबाह हो जाती है. तो ये चीज़ें जो हैं, और इसी तरीके से सुनामी आप देखें, वो भी एक जो है बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेकर आती है. और आप जिन कंट्रीज़ में ये आता है, या जैसे अर्थक्वेक पाकिस्तान में आया था 2005 में, तो हमने देखा था कि ये चीज़ें बहुत डिस्ट्रक्टिव पर्पस होता है इनका. और ये अल्लाह ताला की यहाँ हमें नेचर की जो है हार्श रियलिटी को एक्सप्लेन करता है. लेकिन आप देखें कि आफ्टर दिस हार्श रियलिटी एवरीथिंग इज़ बिकम काम, स्मूथ, फिर दोबारा से इंसान उसी डगर पे चलता है. ठीक है, ओके, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट text. Okay, and these are the meanings. You can take the meanings from the for your help. Yes, number one is the wind is now roaring, smashing, monster of destruction, wrecking all men's work from the valleys, from the vales, and sent them spinning, broken, flying. The wind is now, हवा अब. roaring का मतलब होता है शाउट करना, चिल्लाना, गरजना. smashing, डिस्ट्रॉय करना, तबाह करना, पाश करना. दीज टू वर्ड्स आर यूज्ड एज personification in the poem because human beings do this. Monster of destruction is a metaphor used by the poet. तबाह करने वाली बिल्ला. रैकिंग, तबाह करती है. ऑल मैन वर्क, तमाम इंसान के कामों को. ऐसे ही होता है ना, जब हवा तेज़, तब आंधी आ जाती है. जब सुनामी आ जाए तो हमने देखा है कि हवा की शिद्दत या तूफ़ान आ जाए तो हवा की शिद्दत से हर चीज़ जो है उधर उधर चली जाती है, वादियों से, घाटियों से, और इनको है वो घुमाती हुई, स्पिनिंग करती हुई जो है वो हवा में जो टूटे हुई चीज़ें हैं उनको उड़ा ले जाती है. ठीक है. Yes, in the next stanza, but all of them is not its core. इट्स सेंट्रल इज़ इन ट्रूथ. और कहते हैं कि सब उसकी हकीकत नहीं है, उसकी सच्चाई कहाँ पर है? एटर्नल स्टिलनेस पर. अब्दी सुकून है, खामोशी है. ब्राइट ब्लू स्काइज, नीला रोशन आसमान. एंड ऑल जो हियर, और जो सब आप सुनते हैं, आर जेंटल विस्पर्स. जेंटल होता है धीमी, विस्पर्स खरगोशियाँ. फार अवे, यहाँ पे भी जेंटल विस्पर पर्सोनिफिकेशन राइटर ने यूज़ किया हुआ है. ब्राइट ब्लू स्काइज जो हैं ये राइटर ने मेटाफर यूज़ किया है. इमेजरी यूज़ की हुई है. यहाँ पे राइटर जो है उसने मेटाफर नहीं डिस्क्राइब किया, इमेजरी यूज़ की गई है. इमेजरी कौन सी यूज़ की गई है? विजुअल इमेज यूज़ किया है. एटर्नल स्टिलनेस जो है ये उसका मेटाफर है, राइटर यूज़ कर रहा है, कर रही है. और पोइटिस्ट आप लिख सकते हैं. अफार अवे एंड अनइम्पॉर्टेंट, बहुत दूर और गैर मामूली. लेकिन वो सब कुछ हकीकी मरकज़ तो नहीं. अब्दी सुकून, नीला रोशन आसमान, और जो आप सुनते हैं महज धीमी सरगोशियाँ हैं, कहीं बहुत से दूर और मामूली सी. धीमी सरगोशियाँ यहाँ पर पोइटिस्ट जो है वो कामनेस शो कर रही है कि आफ्टर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल फिनोमिनन, आइदर एनी ऑफ अर्थक्वेक और एनीथिंग, everything becomes calm, and after war everywhere there is peace. तो कहते हैं कि जब तक हम एक्सपीरियंस नहीं करते चीज़ों को, हमें उन चीज़ों का पता नहीं चलता. तो राइटर यहाँ पे बहुत डिफरेंट वे में
और बहुत एक यूनिक वे में जो है वो डिस्क्राइब कर रही है ब्यूटी ऑफ नेचर. Similarly, she described the destructive, and after destruction, she described the peaceful effect of nature. Clear? Here in this page, I have, you can say, separated the imageries, personification, and literary devices used by the writer. Roaring and smashing used is personification. Monster of destruction is metaphor. ये from the valleys, ये सब हम देखते हैं ना, ऑब्वियस वो तो ये विजुअल इमेज आ गया. बट और ये जो इट्स सेंट्रल इज ए ट्रूथ जो है, या ये एटर्नल स्टिलनेस जो है, ये राइटर ने दोबारा मेटाफर यूज़ किया हुआ है. ठीक है, फिर पर्सोनिफिकेशन यूज़ की है, ऑर्डनरी इमेज यूज़ किया हुआ है. तो ये सब, ये जो जेंटल विस्पर है, ये ऑर्डनरी इमेज भी है. तो ये राइटर ने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है. Class 10th, read it again, and if you have any issue you can consult. Thank you. Take care.